Very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, that is microeconomics as well as the statistics for economics. So from the previous few classes we were continuously revise the chapters of your statistics for economics as well as microeconomics, in which students are facing more of the problems. So from the online classes, I have seen that the students are facing the in the problems, basically in the numerical question. So we have already done many of the times these questions which is related to the measures of the central tendency, mean, median, mode, dispersion like standard deviation, variation, as well as we have done numbers of the questions of your correlation index number and so on. Okay, and simultaneously we have also discussed about your microeconomics. So we have discussed the topic that is main market forms, price determination, simple applications of the tools of the demand and supply, and after that we have started the chapter that is theory of demand, right? So in the theory of demand we have already discussed the first of all recapitulate all the things whatever we have discussed in this chapter. So we have discussed about your what is the difference between the want, desire and the demand. Next we have discussed the, what is the meaning of demand, different types of demand. So we have discussed price demand, income demand and the cross demand, and there are also some other kinds of demand, so like joint demand, derived demand, composite demand and so on. Okay, so after that we have started with the discussed with the other things being equal. So we will discuss only the relation between the two factor and other factor remaining the constant, because demand of the X commodity is depend upon the many factors like price of the commodity, price of the related goods, income of the consumer, population, distribution of income, seasons and the climate and so on. But when we discuss the relation between the two factor, we will take in all the other factor remaining the constant. Only one factor, that is price, will be the change, and the other factor remaining the constant. So it becomes the dx is the function of the price of the commodity, price of the related goods, income of the consumer, taste and preference, expectation about the price, as well as the population, distribution of incomes, season and climate. So we will see there are different factors which are affecting the demand of the commodity. So we have taken all the factors remaining the constant. We will study the relation between the dx is the function of price of the commodity. So it is also said by the law of demand. So law of demand says the there is inverse relation. Okay, so we will take the others factor remaining the constant. So after that we have discussed the topic that is explanation of the law of demand. In that we have explanation of the law of demand with the help of the individual measure and the market measure. So individual measure is divided into individual schedule and the individual demand curve, and the market measure is divided into two, that is market schedule and the market demand curve. Okay, we have already discussed all these things. After that we have discussed about the exceptions to the law of demand. Okay, we have discussed exception to the law of demand in the last class. That is, first one is given goods, second one is ignorance, third one is articles of the distinction, fourth one is goods expected to become the costly in the future, necessities goods. So there are different necessities goods which says that if the price of those commodity increases, the demand of those commodity will also be increases, like the medicines and the salt, books, etc. Next we have discussed the other exceptions like the seasons and the climate. So these all are the some exceptions in which the law of demand is not valid, right? So after that we have started the topic that is causes of the negative relation between the price and the quantity demanded. So what are the different causes for the negative relation between the
price and the quantity demanded. So here we need to know that why there is negative relation between the price and the quantity demanded, and in that case how the consumer react. Okay, so we will discuss, we have started this topic, and we have discussed about the law of diminishing marginal utility in the previous class. So law of diminishing marginal utility simply says that when the consumer consuming more of the units of the commodity, so ultimately the additional unit, the utility for consuming those commodities decline. Okay, so we have discussed till here in the last class. We have started with the income effect in today's class. Okay, so let's get started. Okay, so the topic is causes of negative relation between price and quantity demanded. Okay, so or it is also called as the why does the demand curve slope downwards to the right. Okay, why does or demand curve slopes downward to the right. Okay, so these both are the same. कि क्यों negative relation price and quantity demanded में क्यों होता है, why does the demand curve, जो demand curve है वो क्यों slopes downward होता है to the right, left to right वो shift क्यों होता है. तो एक हम लोग ने इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. Law of diminishing marginal utility. Next we have to discuss, that is income effect. So let's understand. So it is the effect of the change in the quantity demanded when real income, that is purchasing power, real income is called the purchasing power of any consumer, of a buyer changes due to change in the price of the commodity. ठीक है, ये इफेक्ट किसका होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हो रहा है, व्हेन द रियल इनकम ऑफ अ बायर चेंजेस, जब किसी भी कंज्यूमर की रियल इनकम, जब उसकी परचेजिंग पावर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है वो ये बताता है. ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि प्राइस के चेंज होने पे कोई भी कंज्यूमर की परचेजिंग पावर में कितना चेंज हो रहा है, वो कितनी कमोडिटी को परचेज कर रहा है. सो फॉल इन प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन द रियल इनकम. जैसे ही प्राइस क्या होगी, फॉल होगी, तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. जैसे मैंने एग्जांपल आप लोग को मैगी का दिया है 10 और 12 रुपीज़ का, कि जैसे ही उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, फॉल कर गई. प्राइस क्या थी, पहले 12 हो रही थी, अब 10 हो गई, तो परचेजिंग पावर किसी भी कंज्यूमर की इंक्रीज हो गई कि नहीं. पहले उसको क्या कर 12 रुपीज़ देना पड़ा था, अब उसको 10 रुपीज़ देना पड़ रहा है. तो वही मैगी का पैकेट अब उसको 10 रुपीज़ में मिल रहा है, तो दैट मीन्स उसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. क्यों, क्योंकि प्राइस उस कमोडिटी की फॉल कर गई. तो इसकी वजह से भी निगेटिव रिलेशन होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में, बिकॉज फॉल इन प्राइसेस इट लीड्स टू दी रियल इनकम ऑफ दी एनी कंज्यूमर इंक्रीजेस एंड अकॉर्डिंगली मोर डिमांड. अब जैसे ही लोग क्या थे, पहले लोगों को कॉस्टली हो रहा था कि 12 रुपीज़ की मैगी हो गई, अभी कैसे खाएंगे, तो लोग क्या करें, अब जैसे ही इसकी प्राइस 12 से 10 हुई, तो अब लोगों को क्या लग रहा है, नहीं अब तो कम हो गया है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी और ज़्यादा डिमांड करेंगे. तो देखिए डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज कर गई. क्यों इंक्रीज कर गई, क्योंकि प्राइस फॉल हुई थी. और जब प्राइस फॉल हुई है तो रियल इनकम, परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है, परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी भी इंक्रीज हुई है. इसकी वजह से भी इनवर्स रिलेशन होता है किसके बीच में, प्राइस एंड द डिमांड. सो ऑन द अदर हैंड रियल इनकम फॉल्स, जैसे ही रियल इनकम फॉल कर जाएगी, क्यों रियल इनकम फॉल करेगी,
बिकॉज ऑफ द राइज इन द प्राइस। प्राइस राइज हो गया है, रियल इनकम फॉल करेगी, डिमांड भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगी। वही एग्जाम्पल, जैसे आपका मैगी 12 का था, अब वही मैगी क्या हो गई है, उसके प्राइस 14 हो गई है। अब 14 हो गई है, पहले लोगों को 10 रुपीज़ में मिल रही थी, 12 रुपीज़ में मिल रही थी। अब लोगों को क्या करें, ज़्यादा प्राइस देना पड़ रहा है। अब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली लोग कहेंगे कि अरे नहीं, अब तो मैगी नहीं खाना, बहुत महंगी हो गई है। तो फिर डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो इट शोज द निगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। इनकम इफेक्ट से हमने समझा कि इनकम में अगर चेंज हो रहा है, रियल इनकम में, इनकम एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि इनकम इंक्रीज करेगी तो डिमांड भी इंक्रीज करती है, बट प्राइस के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इनकम इफेक्ट के साथ जब हम देखते हैं, लोगों की रियल इनकम देख रहे हैं, परचेजिंग पावर देख रहे हैं, उसकी वजह से प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में हम लोग ने देखा कि निगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। So substitution effect says it refers to the substitution of a one commodity in place of the other commodity when it becomes relatively cheaper. Okay, substitution effect क्या है कि it refers to the substitution of one commodity in place of other commodity when it becomes relatively cheaper. ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं डेयरी मिल्क और किटकैट का। कि सब्स्टिट्यूशन होने का मतलब है कि अगर दोनों की प्राइस, आपको किटकैट की प्राइस और डेयरी मिल्क की प्राइस दी हुई है, ठीक, आपको क्या है, किटकैट की प्राइस है, एक किटकैट लेते हैं वो 20 रुपीज़ की है, ठीक, डेयरी मिल्क की प्राइस भी हम लोग ऑलमोस्ट 20 मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर किटकैट की प्राइस 20 से 15 हो जाती है तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। बेस्ट ऑप्शन है, हम लोग देखेंगे, हाँ ये डिपेंड करता है कि किसी को एकदम पूरी चॉकलेट पसंद है या वेफर वाली पसंद है, तो यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है। बट जैसे ही देखेंगे, अरे पहले तो किटकैट और डेयरी मिल्क 20 की थी, अब किटकैट 15 रुपीज़ की हो गई, तो लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, डेयरी मिल्क को सब्सटीट्यूट किससे कर देंगे, किटकैट से। यही होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। प्राइस के साथ हम रिलेशन पढ़ते हैं अभी, ये मैंने बताया सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, जिसमें कह रहा है इट रेफर्स टू द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी का सब्सटीट्यूशन इन प्लेस ऑफ अदर कमोडिटी व्हेन इट्स बिकम रिलेटिवली चीपर। जब ये एक वही जो कमोडिटी है क्या हो जाती है, वो चीपर हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अ राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी दैट इज कॉफी वुड कॉज मोर सब्सटीट्यूट ऑफ द टी। ठीक है, अब क्या है, लोग प्राइस अगर टी की या कॉफी की प्राइस इंक्रीज कर जाती है, हाँ ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इसको समझिए कि जैसे ही प्राइस कॉफी की इंक्रीज हो जाती है, प्राइस इंक्रीज हुई कॉफी की, तो अब लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सब्स्टिट्यूट होते हैं गुड्स, जैसे टी और कॉफी, जैसे मैंने किटकैट और डेयरी मिल्क का एग्जांपल दिया। तो जैसे ही प्राइस क्या हुई, इंक्रीज हुई, मतलब यहाँ पे जो मैंने किटकैट और डेयरी मिल्क का एग्जाम्पल लिया था, अगर ये इसकी प्राइस 20 है, इसकी भी 20 है, इसकी प्राइस 15 हुई तो इसकी प्राइस कम हुई, ठीक है, प्राइस डिक्रीज हुई तो इसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी। इसका हम लोग को सब्स्टिट्यूशन देखना है। जैसे कॉफ़ी की प्राइस क्या हो जा रही है, राइस कर जा रही है, ठीक है, कॉफ़ी जो था, कॉफ़ी पता ही होगा, कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज कर गई तो डिमांड किसकी इंक्रीज कर जाएगी, किसकी इंक्रीज कर जाएगी, टी की इंक्रीज कर जाएगी। यही कह रहा है, राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी कॉफी वुड कॉज मोर सब्स्टिट्यूशन ऑफ टी। कॉफी का क्या होगा, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा टी के साथ, एज इट इज चीपर देन द कॉफी, बिकॉज टी अभी क्या हो गया है, कॉफी से चीपर हो गया, एंड अकॉर्डिंगली डिमांड ऑफ ए कॉफी वुड फॉल एंड द वाइस वर्सा। और जो डिमांड है कॉफी की वो क्या आ जाएगी, फॉल कर जाएगी। जब कॉफी महंगी हो गई है तो लोग किसी पे तो शिफ्ट करेंगे ना, क्योंकि जिसको पीना है वो तो पिएगा ही उस टी और कॉफ़ी को। तो जैसे ही कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज कर जाती है, लोग किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, टी पे शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज टी की प्राइस क्या है, टी क्या है, चीपर है एज कंपेरिजन टू कॉफ़ी। तो प्राइस इंक्रीज होने से कॉफ़ी की जो डिमांड है वो क्या हो गई, कम हो गई है, और डिमांड टी की क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन
इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से भी ये प्रूफ हो गया कि प्राइस अगर इंक्रीज होती है, जैसे कॉफी की प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड उसकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। और इंक्रीज किसकी हो गई, टी की इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप और द मार्केट साइज। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप और मार्केट साइज। Size of the consumer group or the market size. So fall in the price of the commodity leads to increase in the size of the consumer group, accordingly more demand. ठीक है, जैसे ही प्राइस क्या होगी, फॉल करेगी, जो लीड्स टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप, कंज्यूमर ग्रुप की जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी, लोग क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे। एंड राइज इन द प्राइस लीड्स टू फॉल इन द साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, जैसे ही प्राइस राइज करेगी तो कंज्यूमर ग्रुप क्या करेंगे, कोई भी कमोडिटी को जो डिमांड कर रहे थे वो फॉल हो जाएगी, लेस डिमांड ऑफ द कमोडिटी। हम लोग देखते हैं जैसे कोई भी प्रोड्यूसर है और द बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, कोई भी कमोडिटी की प्राइस को इंक्रीज कर रहा है, तो जैसे ही इंक्रीज करता है तो वहाँ से जो भी कंज्यूमर ग्रुप है, जो भी लोग मार्केट है कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं, उसकी प्राइस इंक्रीज होती है तो लोग क्या करते हैं, उसकी कमोडिटी की डिमांड को कम कर देते हैं कि इतना कॉस्टली नहीं कर देंगे। जैसे ही प्राइस क्या होती है, कमोडिटी की डिक्रीज होती है तो डिमांड क्या है उन कमोडिटी की इंक्रीज हो जाती है, तो कंज्यूमर साइज, जो भी कंज्यूमर है वो और कमोडिटी की डिमांड करने लग जाते हैं। तो साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप और द मार्केट साइज भी क्या है, ये शो करता है कि रिलेशन होता है, निगेटिव रिलेशन होता है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। इसलिए ये जो कर्व होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, वो निगेटिवली स्लोप्ड होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज alternative use of the commodity. Alternative use of the commodity. Alternative use of the commodity. ठीक है, alternative use of the commodity. So if a commodity is a highly priced, जब कोई भी कमोडिटी की प्राइस क्या है वो बहुत ज़्यादा है, सो इट्स यूज इज रिस्ट्रिक्टेड, उसका यूज़ क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, इम्प्लाइंग लेस डिमांड फॉर इट, कि उसकी डिमांड क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। एंड व्हेन इट्स प्राइस फॉल, जब उसकी प्राइस क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है, इट इज़ यूज इन दी अबंडेंस, उसका ही यूज़ क्या हो जाता है, अबंडेंस मीन्स बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत लार्ज साइज में उसका यूज़ होने लगता है। सो इम्प्लाइंग मोर डिमांड फॉर इट, उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इज हाई, इट्स यूज इज रेस्ट्रिक्टेड, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, जो टैरिफ होता है, जो हम लोग पे करते हैं, कॉस्ट जो भी मनी पे कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो गया, उसका रेट, इलेक्ट्रिसिटी जो रेट आता है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो लोग उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ करना, पहले क्या था कि लोग ज़बरदस्ती का, अगर उसकी इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम है तो अपने घर में हीटर पे ही खाना बन रहा है, हर जगह एकदम इलेक्ट्रिसिटी का ज़बरदस्ती का यूज़ हो रहा है। बट जैसे ही उसकी क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का रेट क्या है, वो टैरिफ क्या है, वो बढ़ गया, तो लोग क्या करने लगते हैं कि पैसा ज़्यादा देना होगा तो उसका कंजप्शन भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो यही होता है जब कोई भी ऑल्टरनेटिव उसका यूज़ हो जाता है। ऑल्टरनेटिव यूज़ मतलब एक ही चीज़ का हम लोग उसका बहुत ज़्यादा जगह यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही रेट ज़्यादा हो जाएगा, कोई चीज़ हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो ऑल्टरनेटिव यूज़ जो हम उसका डिफरेंट एरिया में कर रहे हैं, गीज़र भी चला रहे हैं अपने घर में, हीटर भी चला रहे हैं, चारों इलेक्ट्रिसिटी, एसी, फैन सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, बट जैसे ही देखा कि अरे इसका रेट तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो घर में होता है नहीं कम यूज़ करो, तो ये क्या हो जाता है, ऑल्टरनेटिव यूज़। कोई भी कमोडिटी की हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव यूज़ करते हैं, तो वो किस पे डिपेंड करता है, किसी भी कमोडिटी की प्राइस पे, जैसी प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जब रेट ज़्यादा होता है तो डिमांड उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। सो ओके, सो दीज ऑल आर दी सम कॉजेज ऑफ द निगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ये सारे क्या है, कुछ निगेटिव रिलेशन जो ये बताते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, निगेटिव रिलेशन होता है। एंड व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लो फ्रॉम द स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, कि वो डिमांड कर्व स्लोप राइट डाउनवर्ड क्यों होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये देखा हमने कैसे होता है स्लोप, दैट इज दिस,
This is your downward sloping demand curve from left to right. Okay. So next one is demand function. अब हमें demand function पढ़ना है. Demand function means जो भी factors affecting demand होते हैं ना, different income of the consumer, price of the related goods, population. So ये सारे को हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ते हैं कि इनकी मीनिंग क्या होती है. Okay, so the topic is demand function. Demand function. In bracket we can also write it. Factors affecting demand. Factors affecting demand and determinants of demand. Factors affecting demand and the determinants of the demand. Okay. So demand function explain the relation between the demand for a commodity and factors affecting the demand. ठीक है, जो भी ये डिमांड फंक्शन होता है वो क्या बताता है, वो रिलेशन बताता है किसी भी डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड अदर्स फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं. अदर्स फैक्टर जो हम लोग जो डिमांड को अफेक्ट करें वो हमने पढ़ा था. क्या क्या करते हैं, प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, income of the consumer, taste and preference, expectation about the price in future, distribution of income, season and the climate and so on. Okay, so these all are the some factors which are affecting the demand. So demand function is simply says the relation between the demand of the commodity and others factors which affecting the demand. So it gives the functional relation between the factors and demand. Okay, it gives the relation between the functional relationship, that is with the help of F we show it. So it simply give the functional relationship between the demand and the others factor. So it is of two types. ये क्या होता है, इसको हम लोग को two types में पढ़ना है, that is individual demand function and market demand function. Individual demand function and market demand function. Market demand function. Okay. Demand function is divided into two, that is individual demand function and the market demand function. So in this we have to study the different factors. First one is price of the X commodity, second one is price of the related goods, third one is income of the consumer, fourth one is taste and preference of the consumer, and the last one is expectation about the price in future. ठीक है, so these PX shows the price of the X commodity, कि कोई भी commodity जो consumer consume कर रहा है उसकी क्या प्राइस है. So this is the price of X commodity. This one is price of related goods. Price of related goods. This one is income of the consumer. Income of the consumer. Taste and preference. Sorry. Taste and preference. And this one is expectation about price. की एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस इन फ्यूचर, की फ्यूचर में प्राइस क्या होगी. ओके, सो मार्केट डिमांड फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू several factors, that is price of the X commodity, price of the related goods, income of the consumer,
taste and preference, expectation about the price in future. Next one is YD is distribution of income. Next one is season and the climate. And the last one, I think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And the last one is population. So these all are the 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right. Okay. So these all are the ये सारे क्या है आपके, देखिए यहाँ तक तो सारे कॉमन है. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन में यही है कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हम लोग बस एक इंडिविजुअल और सिंगल हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं. अगर मार्केट डिमांड की बात करें तो ऑल दी कंज्यूमर्स, जितने भी मार्केट में कंज्यूमर प्रेजेंट हैं हम उन सबकी बात करते हैं. यही इनमें बेसिक डिफरेंस है. ठीक है, तो यहाँ तक क्या है, दीज ऑल आर द सेम, ये तो सेम है तो इसको आप लिख सकते हो. नहीं तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. S shows the season and the climates, and N is population. Okay, N is population. Okay, ठीक. तो अब इनको ही क्या करना है, हमें 1 by 1 पढ़ना है इनका रिलेशन किसके साथ, डिमांड और इन फैक्टर्स का. डिमांड और इन सारे फैक्टर्स का अलग अलग पढ़ना है कि क्या होगी डिमांड जब इन सारे फैक्टर्स में क्या होगा, इन सारे फैक्टर्स में जब चेंज होगा तो डिमांड पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा. हम लोग अभी तक एक ही फैक्टर के साथ स्टडी कर रहे थे, दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एक्स कमोडिटी. जब डिमांड एक्स कमोडिटी की देख रहे थे तो प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी के साथ ही हम रिलेशन पढ़ रहे थे, और सारे के साथ हम लोग छोड़ दिए थे, नहीं पढ़ रहे थे. और सारे को हम लोग क्या कर रहे थे, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, सारे को हम लोग कांस्टेंट ले रहे थे. अब क्या करेंगे हम लोग, डिमांड का इसके साथ, डिमांड का रिलेशन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, डिमांड का इनकम के साथ, डिमांड का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस इन फ्यूचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सीजन एंड द क्लाइमेट एंड द पॉपुलेशन, इन सारे के साथ डिमांड का हम लोग रिलेशन देखेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस विद द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, so it shows the relationship between the demand of a commodity and its various determinants by an individual household. ठीक है, किसके बीच में रिलेशन देखेंगे, इंडिविजुअल, इसमें हम लोग रिलेशन देखेंगे डिमांड और अदर्स फैक्टर्स विच अफेक्ट द इंडिविजुअल डिमांड ऑफ द यानी कमोडिटी. कोई भी सिंगल हाउस होल्ड है उसकी कितनी डिमांड हो रही है, वो किन किन सारे फैक्टर्स से अफेक्ट हो रहा है, उनके साथ हम रिलेशन देखेंगे. ठीक है, सो दिस डिमांड फंक्शन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द टेबल एंड द डायग्राम एज गिवन बिलो. हम लोग ये एक एक का रिलेशन एक एक फैक्टर के साथ देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल. हम एक शेड्यूल और टेबल लेंगे और उसका डायग्राम के साथ एक एक का रिलेशन देखते हैं. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस विद द इंडिविजुअल डिमांड. हम लोग इंडिविजुअल डिमांड के रिलेशन देखते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, मार्केट डिमांड फंक्शन पे शिफ्ट करेंगे. ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन दी प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑन इट्स डिमांड. ठीक है, जब प्राइस कमोडिटी की चेंज हो रही है तो डिमांड पे उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ये रिलेशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये टेबल से आपको समझ में आ गया होगा कि जिस्ट और समरी क्या है, यही सारे फैक्टर्स है और यही सारे फैक्टर्स के साथ हमको रिलेशन देखना है. सो फर्स्ट देखेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी. इफेक्ट ऑफ चेंज in price of a commodity, price of a commodity, that is PX, on its demand. That is DX. ठीक है, कि प्राइस का इफेक्ट ऑफ चेंज, प्राइस में अगर कोई भी कमोडिटी की प्राइस चेंज हो रही है तो उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट डिमांड पे क्या हो रहा है ये देखना है. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ऑन इट्स डिमांड, दैट इज QD, क्वांटिटी डिमांडेड, वी विल टेक ना क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द एक्स कमोडिटी. ओके, सो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. ठीक है, हमें पता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं,
लॉ ऑफ डिमांड से और प्राइस डिमांड से, यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, निगेटिव रिलेशन होता है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। सारे फैक्टर्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं, और रिलेशन किसके बीच में पढ़ते हैं, प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। इफ द प्राइस ऑफ द एनी कमोडिटी इंक्रीजेस, demand of the that commodity decreases. If the price of the that commodity decreases, demand of the commodity increases. Okay, so this is the relation between the price and the quantity demanded, right? So okay, so it's all about your today's class. We will continue this topic, that is individual demand function and the market demand function, in the next class also. Okay, thank you.